कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नॉलेज आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए एंड आपको क्वेश्चन से डील करना आना चाहिए। लाइक ग्लैम आपको बहुत हेल्प करेगा उसके लिए। कई बार आई गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर आई एम नॉट एबल टू रिटेन द थिंग्स, एंड फॉर दैट मैटर व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि मैं बार बार अपनी चीज़ों को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करता रहूँ। और इसमें of course the LMS plays an important role because you have a lot of questions to practice out there. When I was get to know about US enrolled examination, I feel कि it is very hard, but not ये hard नहीं है, but you have to make your own notes and you have to follow the। इस क्वालिफिकेशन को अगर सही ढंग से समझा जाए तो 3 ही पेपर देने से आप इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन ले लेते हो इंडिया में रहते हुए। लक्षिका जी, बात समझ में आती है? कैसा चल रहा है बेटा? हाउ आर थिंग्स? वेरी गुड। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कि पेपर क्लियर करने की इतनी खुशी है या पहली बार में क्लियर करने की इतनी खुशी है, या ये खुशी है कि अब मैं फटाफट से ये क्वालिफाई करके जॉब कर लूँगी? किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है? I have cleared my exam in first attempt. I'm very happy for. Yes, that is true. इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना। हम मेहनत करें और पहली बार में एग्जाम क्लियर हो जाए तो क्या ही कहने। Good. I think Lakshika, I tell you the reason why I thought we should spend time and of course interview you or talk to you is more to somehow somewhere guide the upcoming students कि नहीं, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन्हें कैसे सोचना चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में। what is that works for them, what is that people have been doing as a mistake, and so on and so forth. So that is the thought that we had when we thought of in terms of starting off this. So सबसे पहले ना लक्षिका, मैं चलूँगा आपके इंट्रोडक्शन पे। थोड़ा अपने बारे में बताओ, आपने क्या किया हुआ है, आपने कैसे सोचा ये के बारे में, थोड़ा सा उस बारे में बताओ। Like right now I am in first year. I recently passed my 12th class and I recently cleared my first sem. I given my exam for first semester and yeah, I was in 12th class and I had a business practical and my teacher was so impressed with me when I gave my business practical. So he told me कि what are you doing right now instead of your 12th class? So I told him कि I am learning French language also with my 12th class. So he told me कि you should choose US enrolled agent because your English is very good and very nice and you are talking very in impressive way and you are giving very intelligent answers. And he was very impressed with me. Then he told me about the US enrolled course. So I was thinking like I don't know about US enrolled examination. What is US enrolled agent? So I was scrolling the YouTube and I saw your YouTube video. Then I get to know what is US enrolled examination. Then I get in touch with Kalpana ma'am. Then I joined the institute. Then I proceed further. Yes. It was my journey. So that's how you reached out to FinTram Global, right? अच्छा, Yes, पता है sir. ये बच्चे, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि ना काफ़ी सारे जन को ना एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि एनरोल्ड एजेंट क्वालिफिकेशन जैसी भी कोई क्वालिफिकेशन है। Yes, sir. In my school also, all the students ask me कि what is US enrolled agent? What are you doing? Then I have to explain them. Even though my teacher also said कि what is this and how you planning for this. Then I explained them. Then they get to know कि what is this. विच इज़ ट्रू एंड कोई बेटा आप अलग नहीं हो। बहुत सारे जन अभी भी इंडिया में ये नहीं समझ पाए हैं या उन्हें नहीं पता है। समझ पाए विल बी माइट बी अ रॉन्ग थिंग, बट नहीं पता है कि जैसे साइंस के बच्चों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं ना, ऐसे कॉमर्स के बच्चों के पास भी अब कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो वो ले सकते हैं जो ग्रेजुएशन से हट के हैं। ग्रेजुएशन तो सब करते हैं पर ग्रेजुएशन आपको भीड़ से अलग नहीं करती है ना। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वालिफिकेशन चाहिए जो आपको भीड़ से अलग करे तो वो क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एनरोल्ड एजेंट एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो क्लास 12 के बाद आप शुरू कर लेते हो।
और अपनी Yes, लॉजिकली sir. ग्रेजुएशन से पहले ही खत्म कर लेते हो, बिकॉज इसमें इतना टाइम लगता नहीं Yes, है। sir. 12 Yes, से sir. 15 महीने में, Definitely. 18 महीने में तो पक्का से हो जानी है। द ओनली थिंग हाँ. इज कि आपको ये पता हो कि क्वालिफिकेशन है क्या। एंड जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस लेट मी जस्ट टेल यू कि जिस तरह से इंडिया में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है, यूएस में ऐसे कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे एक सर्टिफिकेशन चाहिए जो आती है यूएस की टैक्स अथॉरिटी से, और यूएस की जो टैक्स अथॉरिटी है वो है यूएस आईआरएस, जिसे हम IRS. इंटरनल रेवेन्यू सर्विस बोलते हैं। Yes. और जो ईए क्वालिफिकेशन है ये आईआरएस की सर्टिफिकेशन है। आप जब ईए का पेपर देते हो तो आईआरएस आपको सर्टिफाई करता है कि हाँ अब आप एलिजिबल हो फॉर रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स, फॉर फाइलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, फॉर फाइलिंग द रिटर्न्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस वजह से ना ये क्वालिफिकेशन पूरे यूएस में एप्लीकेबल है। मैं खुद सीपीए भी हूँ, बट सीपीए ना किसी एक स्टेट का होता है, जबकि एनरोल्ड एजेंट जो होता है वो पूरे यूएस का होता है। तो आप All the states. बहुत सारी स्टेट्स, जितनी भी आप स्टेट्स आप देखोगे, आप सब स्टेट से एज एन इनकम टैक्स एक्सपर्ट काम कर सकते हो। और इसीलिए इस क्वालिफिकेशन को अगर सही ढंग से समझा जाए तो 3 ही पेपर देने से आप इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन ले लेते हो इंडिया में रहते हुए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये क्योंकि एक यूएस की क्वालिफिकेशन है और बहुत सारी यूएस कंपनीज अब इंडिया में हैं, क्योंकि वो इन सम शेप ऑफ फॉर्मेट वो यहाँ से टैक्स का काम करा रही हैं, तो उन्हें एक बहुत बड़ा किकर मिल जाता है, फायदा मिल जाता है टू बी पार्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस। एंड वी हैव स्टूडेंट्स Yes, sir. वर्किंग इन वेरियस बिग फोर्स कह लो, या फिर वेरियस टॉप नेशनल्स वाली ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, वो अब वहाँ काम कर पा रहे हैं बिकॉज वो वहाँ के टैक्स एक्सपर्ट्स हैं। और दिस इज व्हाट many of the students even right now at this point in time they are not aware of, और यही चीज़ समझने वाली है। एंड आई थिंक लक्षिका, मुझे तो हैरानी है कि आपको उस स्टेज में किसी टीचर ने बताया जो क्लास 12 में, जनरली क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता होता है बेटा, बट अगर ऐसी कोई चीज़ आपको पता चली है ना तो वो एक्चुअली में इट्स ए बिग टाइम एडवांटेज, बिकॉज वो अगर टाइमली कहते हैं ना, वो टाइमली इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो शायद मैं टाइमली स्टेप ले लूंगा, और टाइमली स्टेप ले लूंगा तो मैं अच्छी सी ग्रोथ ले लूंगा एंड सो ऑन Yes, सो sir. फोर्थ। Yes, sir. अच्छा लक्षिका, चलो डिसीजन ले लिया, सर ने बताया, तुमने रिसर्च किया, ऑफ कोर्स यू वुड हैव रिसर्च्ड अबाउट ईए, फिनट्राम ग्लोबल, फिर आपने फिनट्राम के साथ जर्नी स्टार्ट करी। बट आपने जब ये एग्ज़ाम दिया तो आपको कितना डिफ़िकल्ट लगा, कितना आपको लगा सही में कि ऐसा कुछ है जो रॉकेट साइंस है, जो बहुत मुश्किल है, जो No, not a big deal. But yeah, you have to clear your all the concepts. Conceptual based knowledge आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए, एंड आपको बुकिश नॉलेज नहीं, आपको मतलब क्वेश्चन से डील करना आना चाहिए। लाइक ग्लैम आपको बहुत हेल्प करेगा उसके लिए, क्योंकि उसमें ग्लैम में आपको बुकिश नॉलेज नहीं मिलती, उसमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाती है, आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं आपको ऑल द टॉपिक्स के। सो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने खुद के नोट्स बनाओगे, और उनको आप एट द टाइम आप उनको रीड करोगे, अपने खुद के नोट्स को बनाए हुए जो नोट्स आपने बनाए हैं, तो आप पास कर लोगे, वो कोई हार्ड नहीं लगेगा आपको। एंड आई कुडंट एग्री मोर ऑन दिस गाइस। एक चीज़ ना ये में बहुत अच्छी है, वो ये कि इसमें ना 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, 3 एग्जाम्स हैं। जैसे पहला पार्ट डील करता है इंडिविजुअल टैक्सेशन के साथ, जहाँ पे हम इंडिविजुअल असेसीज कैसे इनकम टैक्स रिटर्न यूएस में फाइल करते हैं, हम वो सीखते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप से डील करता है, बिजनेसेस से डील करता है, तो हम वहाँ बिजनेस रिटर्न्स देखते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो रिप्रेजेंटेशंस, एग्जामिनेशंस, जो हम स्क्रूटनी बोलते हैं, उससे डील करता है, जो क्लाइंट्स की वहाँ होती हैं, जहाँ आप उन्हें रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो तीनों डिफरेंट टॉपिक हैं, और आपको तीनों में ये एक्सपर्ट करेगा, बिकॉज एक टैक्स एक्सपर्ट के लिए तीनों में एक्सपर्टीज होना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो लक्षिका आपने बताई यहाँ पे, वो ये है कि एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, बट एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। और वो स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स गाइज, FinTram works with various US content providers, and for EA we have been very closely knitted with Gleim, and Gleim is the world renowned name when it comes to the EA as a qualification, जहाँ पे जो आपको LMS मिलता है, जिसमें thousands and thousands of practice questions होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ए स्ट्रैटेजी। अच्छा, मुझे इस पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे ये पूछेगा, तो मैं एटलीस्ट मैं उस पर हेल्प कर सकता हूँ।
एंड ऑफ कोर्स ओवर एंड अबव फिनट्राम के लाइव सेशंस तो हैं ही जो वीकेंड्स पे होते हैं, जहां आप लाइव फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। एंड लक्षिका, यू एंड मी हैव आल्सो स्पोकन वेरियस टाइम्स ऑन दिस, जहां हम बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेलिंग यू, अच्छा नहीं बेटा इसकी स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं, ऐसे बनानी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो एक गेम चेंजर होता है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग थ्रू द नेक्स्ट स्टेप्स। और यही मुझे लगता है लक्षिका कैन वर्क अराउंड एंड कैन हेल्प एनीवन एंड एवरीवन इन द वर्ल्ड। बट फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं लक्षिका कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बेटा टफ लगी, जो आपको लगा कि नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, टफ है? इसमें हम अगर ग्लैम के कॉन्सेप्ट देखें तो जो इंडियन एक्सेंट है इंग्लिश में, तो आपको वो कुछ वोकेबलरी पे आपको डिफिकल्ट लग सकता है, जो वोकेबलरीज हैं ग्लैम के उसमें चैप्टर्स में। तो हम अगर उन वोकेबलरीज को फिगर इट आउट करके उनको अगर साइड में लिख लें और थोड़ा सा हिंदी में उसको कर लें अपने हिसाब से, तो और भी वो इजीली ग्लैम का कंटेंट हम फॉलो करके अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। और या खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो इजीली हो जाता है, बट वोकेबलरी पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है इसमें ग्लैम के कंटेंट में। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए तो शायद लक्षिका हमारे इन हाउस जो फैकल्टी के सेशंस है वहाँ वो हेल्प करते हैं, बिकॉज इंडियन फैकल्टी होगा तो वो आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट दे पाएगा, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कंपैरिजन दे पाएगा, तो वो एक हेल्प मिल जाता है वहाँ पे कि नहीं इसको ऐसे नहीं बेटा ऐसे देखो। और बहुत सारे ना हमारे सेशंस क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मिक्स में होते हैं, तो वहाँ पे वो भी एक फ़ायदा मिल जाता है उसको एटलीस्ट डाइजेस्ट करने का। अच्छा, इसको ना मैं डिफरेंट तरीके से अगर लक्ष्य पूछूं कि अब हम ईए के बारे में सोच लिया, हमने ईए में डिफ़िकल्टी लेवल भी देखा, जो नए बच्चे आ रहे हैं लक्षिका, जो नए बच्चे अब ईए करने का सोचेंगे या जो सोच रहे होंगे, उनके लिए कोई सजेशन है जो लक्षिका देना चाहेगी कि उन्हें कैसे सोचना चाहिए, उन्हें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ बताना चाहोगी? When I was get to know about US enrolled examination, I feel कि it is very hard, but not ये hard नहीं है enrolled agent examination, but you have to make your own notes. आपको खुद के notes बनाने होंगे and you have to follow the daily routine. अगर आप बीच में आपको डेली रूटीन में आप छोड़ दोगे उस स्टडी को, देन यू विल गेट डिफिकल्टी इन एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे रूटीन बहुत मैंडेटरी है। आपको डेली वो चैप्टर्स वाइज फॉलो करना पड़ेगा। डेली जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके एक बार ही नोट्स बनाइए एंड देन उसको अगेन एक बार देखिए। अगर तुम दूसरे दिन आगे जाते हो तो एक बार पीछे वाला भी देखो, ये नहीं कि आगे 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 बस ये है। Which is true, guys. This actually brings up a very very important and a relevant point कि हमें ना कहीं कांस्टेंट रिवीजन की जरूरत होती है इन कोर्सेज में। कंटेंट ना दिखने में छोटा होता है पता है, बट एक्चुअली मेरा लक्ष्य का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो दिखता है एक छोटी सी बुक है, बट इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि हम वो कहते हैं ना अगला पकड़ और पिछला छोड़ वाला हिसाब हो जाता है। कहीं पर आई गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर आई एम नॉट एबल टू रिटेन द थिंग्स, एंड फॉर दैट मैटर व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि मैं बार बार अपनी चीज़ों को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करता रहूँ। और इसमें of course the LMS plays an important role because you have lot of questions to practice out there. आप जितने कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे और एक बार दो बार तीन बार आप वो प्रैक्टिस करते चले गए, तो you will certainly become a proud Fintrammer come what may, because तब आपका रिजल्ट is certainly gonna be hitting hard and of course you would really get the feel for it. लक्षिका, अगर मैं एक चीज़ एग्जाम रूम से रिलेटेड पूछूं कि जब तुम एग्जाम देने गई, आई रिमेम्बर एग्जाम के दिन से एक बार दिन पहले तुम्हारा मेरा बात भी हुआ था, राइट? वो ट्रेन में जब तुम थी, तो अगर मैं बेटे ये पूछूं कि एग्जाम रूम में स्टूडेंट को किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, तो वो क्या चीज़ होगी बेटा? एक तो ऑफकोर्स आपको पासपोर्ट चाहिए, बिकॉज ये का पेपर देने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट पे जो आपका नाम है वही आपका एग्जाम बुकिंग में नाम होना चाहिए, ये तो ठीक है, बट इसके अलावा किसी और चीज़ का ध्यान रखना है बेटे एग्जाम रूम में? इसके अलावा बस नर्वस मत हो, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ये है कि आपको देखे हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। कि आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने तो ये पढ़ाई नहीं, बिकॉज अगर आपने बुकिश नॉलेज ले रखी है, रेक्टिफिकेशन कर रखी है, तो आपको डिफिकल्टी फील होगी। अदरवाइज जो क्वेश्चंस आप देखोगे, अगर प्रैक्टिकली थिंकिंग करके आपने एग्जांपल्स के थ्रू आपने अपनी स्टडी करी है एंड जो आपके एमसीक्यूज गलत गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देखिए उन सारे एमसीक्यूज की, देन यू विल डेफिनेटली
crack your examination. Otherwise, you feel difficulty in your examination and you feel definitely nervous. अच्छा, एक चीज़ ना लक्षिका बहुत अच्छी बोली आपने कि ऑफ कोर्स अपना एक कहते हैं ना नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होने देना है। मुझे ऐसा हाँ नहीं जी। करना है कि मैं घबरा जाऊं। होगा ऐसा एग्जाम में ज़रूर से होता है कई बार कि हाँ कुछ ऐसे हाँ क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने नहीं देखे हुए या मेरे को इतने अच्छे हाँ स्ट्रांग नहीं पता है। बट इस एग्जाम में ना एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ हाँ, तो नेगेटिव ना मार्किंग नहीं है। तो मुझे ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मुझे मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करे और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा ओ गॉड मैंने तो ये देखे नहीं थे, मैंने तो ये समझा ही नहीं था। बट फिर भी बेटा अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे के ना उसको आना है, उसको छोड़ना नहीं है, हाँ ब्लैंक नहीं छोड़ना। करके आना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा बट नंबर तो नहीं जाएंगे। अगर ठीक हो गया तो 1 नंबर 2 मिल नंबर जाएंगे बहुत नंबर। बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आई थिंक what is really important is that we do not miss on it in terms of कि एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, दूसरा घबराना नहीं है एग्जाम को देख के, तीसरा आई थिंक लक्षिका मुझे कभी भी नहीं लगा कि इस एग्जाम में ना टाइम प्रॉब्लम करता है। टाइम तो पूरा होता है, टाइम मैनेज हो जाता नहीं है, नहीं, इसमें टाइम की या प्रॉब्लम नहीं आती। टाइम तो पूरा होता है बिकॉज मेरा खुद का एग्जाम 1.5 आवर पहले हो गया था। हो जाता है, इसमें एग्जाम में हाँ टाइम की कमी नहीं आती है। हाँ बट हाँ मुझे लगता है सिर्फ वहाँ कमी आ सकती है अगर आप घबरा गए और आप कंफ्यूज हो गए, देन इट विल बी ए बमर, हाँ अदरवाइज तो प्रॉब्लम नहीं आता है। हम्म। अच्छा लक्षिका, अगर मैं इसको अब फिनट्रैम से कोरिलेट करूं एंड हाउ हैज बीन योर जर्नी विद फिनट्रैम, कैसा सपोर्ट मिला, हाउ डू यू वांट टू शेयर दोस थिंग्स? सपोर्ट भी अच्छा था, क्लासेस भी अच्छी थी। एंड या अगर डिफिकल्टी आती है तो आपको कल्पना मैम से बात करके या फिर किसी भी आपको किसी का भी टीचर का नंबर दिया गया है, वो आपकी डिफिकल्टी रेज करते हैं एंड आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। मिल जाता है, सपोर्ट भी अच्छा है वो। विच इज समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट नीड्स, राइट? यही तो चाहिए यस यस बॉस। पास होने यस के लिए मुझे चाहिए क्या? अच्छा कंटेंट, अच्छे यस तरीके से यस पढ़ाया हुआ, और जो यस मुझे यस। रिलेटेड सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम बुकिंग, इन हाँ टर्म्स जी। ऑफ हाँ इंश्योरिंग कि नहीं मैं कोई पीस मिस ना करूं। इनफैक्ट रिमेंबर लक्षिका, हमारा एक एग्जाम से पहले एक सेशन भी होता है वेर इन विल टेल यू कि अच्छा आखिरी दिन है ना बेटा, आप तो इस चीज़ का ध्यान रख के जाना, ये चीज़ इस नहीं चीज छोड़ का के ध्यान जाना, रखिए। एंड सो हाँ ऑन सो जी। फोर्थ। So I think that's the icing on a cake kind of thing which helps you, right, in terms of coming up the curve and doing what you're doing. So, Lakshya, and I don't want to take much of your time. We just wanted to make it very crisp. कोई ऐसी चीज़ जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि जो नहीं करनी है इस एग्ज़ाम को देने से पहले? एक तो करनी है तो आपने बता दिया कि 1 2 3 प्रैक्टिस करनी है, घबराना नहीं है ना। कोई ऐसी चीज़ जो नहीं करनी है स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम में देने से पहले? आप अपने एलएमएस पे अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज मैंने खुद ने स्टार्टिंग में करी थी ये चीज। मेरे जो भी एमसीक्यूज गलत जाते थे मैं उनको देखती नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा दोबारा अपना सिलेबस का रिवीजन करेंगे तो ये क्वेश्चन सही चले जाएंगे। बट वो दोबारा गलत जाते थे क्योंकि हम वहां पे कुछ चीज मिस कर रहे होते हैं और हम उसकी एक्सप्लेनेशन ना देखेंगे तो वो होएगा नहीं वो क्वेश्चन। तो हमें उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जरूर देखनी चाहिए जो क्वेश्चन हमारे गलत जाते हैं। आई लव्ड इट। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के बेटा, बिकॉज एक्चुअली में ना जब आप गलती करते हो ना और आप अपनी गलती को उस समय रीड आउट कर लेते हो कि हाँ मेरे से कहाँ गलती हुई हाँ है, तो वो फिट हो जाती है दिमाग में। तो मैंने हाँ कंटेंट पढ़ा या नहीं पढ़ा ये सेकेंडरी हो जाता है। देन व्हाट इज रियली हाँ इंपॉर्टेंट इज दैट अब मुझे गलती अपनी पकड़ में आ गई और अब मैं ये गलती हाँ। दोबारा नहीं करूँगा। सो आई लव दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट रिवीजन पे डिले मत करो वो मिस्टेक की। हाँ नेक्स्ट रिवीजन पे सॉल्व हो जाएगी। True, very true. I think that's pretty much Lakshika. I really want to thank you for taking out time, beta. I think ये छोटे छोटे सेशंस होते हैं बेटा जो ना स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ नोइंग द बेस्ट प्रैक्टिस। जितना वो समझेंगे उतना वो सही डिसीजन ले पाएंगे, सही रास्ते चल पाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड दैट्स व्हाट FinTram really believes in and has been helping students around. So thank you very much. Of course मेरी कॉफ़ी ड्यू है, सो Yes, sir. मैं जब भी राजस्थान आ रहा हूँ तो मैं वो कॉफ़ी पक्का से पीने वाला हूँ, पक्का पक्का से। सर, और जब तुम पक्का। जब भी दिल्ली आने वाले हो तो तुम भी पीने वाले हो मेरे साथ, भूलने हाँ नहीं जी वाले हो सर, बिल्कुल अभी। बिल्कुल सर। So don't forget, I think we just did one interview few days back, and we had a good round of coffee with the person. So भूलना नहीं है लक्ष्य का, जिस भी दिन तुम दिल्ली आ रहे हो मुझे रिंग करना ही करना है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। Good. Thank you very much Lakshika for your time. Look forward beta, and God bless. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू।